See, for normal form is based on the multi-value dependency. So what is the multi-value dependency? First of all, as we have seen in case of the functional dependency में क्या होता था? बताएगा कोई? When we talk about a functional dependency, so in case of the functional dependency, क्या concept होता था? A set of attributes uniquely determines the set of other attributes in a relation. By, right? कि X uniquely functionally determined by. And for the formal concept of this determination of x2 by is we have to consider two tuple t1 and t2, right? क्या करते थे हम? दो tuple consider करते थे t1 and t2 such that if one of x equivalent to t2 of x, right? t1 of x equivalent to t2 of x if exist, right? तो क्या होना चाहिए था? Then there must be t1 of क्या होता था? by is equivalent to t2 of by. ये क्या था? ये कॉन्सेप्ट था किसका? फंक्शनल डिपेंडेंसी का. यहां पर क्या होता था कि हर x के लिए एक y की वैल्यू होगी, ठीक है? एक x है, यानी कि x के थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे आपके सारे डिफरेंट टपल्स, राइट? सो यू कैन से x functionally determine the value of y. Now, sometime whenever we create any relation, right, like in case of the if you are taking a student information, right, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आप अगर देखें तो स्टूडेंट के में आप इंफॉर्मेशन में क्या क्या रखते हैं? स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और बाकी भी स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन. अगर किसी ने इस रिलेशन में, स्टूडेंट रिलेशन में कहा कि उसके कॉन्टेक्ट नंबर्स क्या हैं, लाइक्स क्या है, क्या वो लाइक करता है, क्या उसकी हॉबीज हैं, ठीक है, अगर हमारे पास ये रिलेशन होता है स्टूडेंट रिलेशन दैट कंटेन स्टूडेंट आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर एंड लाइक्स, तो क्या होता कि हमारे पास एक कुछ टेबल बनती इस टाइप से, वी कॉल इट जस्ट, हमारे पास एक होता एस आई डी, दूसरा होता उसके पास कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, ये आपकी एक फील्ड होती, और तीसरी फील्ड होती है उसके पास लाइक्स की. ये होता स्टूडेंट है, लेट इट इज S1, ठीक है, और उसके पास एक से ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर है, लेट इट इज M1, और उसके पास एक कॉन्टेक्ट है M2. सिमिलरली अगर हम कहते हैं उस M1 जो S1 स्टूडेंट है उसके लाइक्स हैं L1 और L2, L1 एंड L2, ठीक. ऐसे एक और स्टूडेंट है, लेट इट इज S2 फॉर एग्जांपल, और उसके पास एक ही कॉन्टेक्ट नंबर है, बट उसकी हॉबीज या लाइक्स जो हम बात करें तो वो है L1, L2 एंड तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो एंट्रीज आ रही हैं कि टेबल में वी हैव right. So as one student having to
कॉन्टेक्ट नंबर, मे बी देयर मे बी मोर देन 2 कॉन्टेक्ट नंबर, जरूरी नहीं कि हमने कहा कि 2 ही है, एक से ज्यादा भी हो सकते थे, ठीक है, और उसके लाइक्स भी एक से ज्यादा है। यहां पर दूसरे S2 स्टूडेंट की बात करें तो यहां पर इसके लाइक्स कुछ ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा। सो हियर वन ऑफ द स्टूडेंट एसोसिएटेड विद द मल्टीपल वैल्यूज, one of the student associated with the multiple values, right, like their contact number or maybe their likes, right. So such kind of uh, say there may exist a multi-value dependency between SID and contact number and between SID and likes। हो सकता है क्योंकि एक स्टूडेंट के साथ कई सारी वैल्यूज आ रही, यानी कि फ्रॉम S1 you can determine multi value of contact number, right? Similarly for SID you can determine multi values of likes. So here we have some dependency, and like the functional dependency, here we have only determined a single value, but in case of the multi-valued we can determine multi-value dependency, we can determine multi-value, like कि SID, right, determine, see multi-value dependency is represented by double arrow, multi-value dependency is represented by double arrow. So SID now here determine what contact number, right. Similarly here SID also multi-value determine what, this is what, likes, right. So there exists two kind of dependency, these dependency known as multi-value dependency। बात समझ में आ रही है सभी को कि what is the multi-value dependency? In case of multi-value dependency, that means from one set of attribute you can determine many value of another set of attribute। Clear? ये बात सबको समझ है कि व्हाट इज द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, कि एक एट्रीब्यूट के थ्रू आप अगर किसी दूसरे एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट, देन देयर एग्जिस्ट ए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी फ्रॉम दोस सेट ऑफ एट्रीब्यूट between two set of attributes like x to y. So this is now represented as x is any set of attribute, now multi-value determine the value of y. This is called multi-value dependency. बात सबको समझ में आ रही है? What is multi-value dependency? If x multi-value determined by, then there exists this. But whenever we do this in the computer system to enter all these values or insert all these values, can be possible to insert all these values? क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। इन वैल्यूज को कैसा करना पड़ता है हमें? सिंगल वैल्यूड। कैसा बनाना पड़ता है? सिंगल वैल्यूड, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंगल वैल्यूड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगी टेबल, टेबल की बात करें तो कुछ टेबल इस टाइप से आ जाएगी, जिसमें हमारे पास एक एंट्री होगी किसकी, SID की, एक एंट्री होगी हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर की, और बाकी एंट्री लाइक्स की। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा SID, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका व्हाट, कॉन्टेक्ट नंबर, एंड अनदर वन विल बी योर लाइक्स, ठीक है। ये एंट्रीज होंगी, और इसमें कैसे एंट्रीज आएंगी ये देखिए। सबसे पहले क्या होगा, यहां पर S1, फर्स्ट एंट्री फॉर S1, देन दिस कॉन्टेक्ट नंबर इज M1, एंड करस्पॉन्डिंग दिस वी हैव ए लाइक L1, ठीक है। बात क्लियर हो रही? S1 then M1 then L1। Now
सेकेंड एंट्री फॉर दिस, क्योंकि ये देखिए 2 से एसोसिएटेड हो रहा है कि S1 नाउ एसोसिएटेड विद M1 एंड M2, सो दिस इज नाउ S1 एंड देन इट इज नाउ अगेन M2 that is also associated with L1, क्योंकि आप ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे उस हिसाब से बात करते हैं, ठीक। फिर आएगा S1, now it goes to M1 with which likes, that is L2. Similarly we have a S1, then we have a M2 with L2. Now same case for the S2, there is only one entry for contact number, that is M1, but it is now associated with the 3, so we got 3 entries for this S2. Then it goes to L1 and then it is L2, and now S2 with M1 and it is now become L3, right? So this will be your entry, this will be your relation, that is a student, because we have to store all these entry into the single value, so this now relation become like this, right? We have to enter all this. So how can you check whether there exists a multi-value dependency in this relation or not? See, in this case we have to check, like in the case of the functional dependency we have to check 2 tuple, here we have to check 4 tuple. What are those 4 tuples? So in that case we have to consider 4 tuple like T1, T2, T3, T4 and T6. T3, T4. So here we have to consider T1, T2, T3, right? 4 tuple is considered. So in that case, if you have T1 of, if we call X multi-value determined by if T1 of X is equivalent to T2 of X, and there may consider 2 more tuple like T3 and T4, and that is also equivalent T3 of X equivalent to T4 of X, because it happens only when we have a multi-value, otherwise only 2 tuples. In that case, if this exists, if T1 of X equivalent to T2 of X, that is equivalent to T3 of X, that is equivalent to T4 of X, then for dependency of by, right, that case देखिए S1 यहाँ पे अगर हम चेक करें तो S1, this is a first tuple, this is a second tuple, यानी कि this is first tuple, this is a second tuple, this is a third tuple, this is a fourth tuple, and all these values are equivalent to each other, right? So here all values are S1. So corresponding to this, if we say dependency between SID and contact number, see here with this value the T1 tuple is now matched with the T3 value, and T2 value is now matched with the T2 value. That means ऐसा तभी possible था जब एक और attribute आपका इसमें exist कर रहा है, otherwise there is a single value all, right? So here in case of the multi-value there must be we call it T3 of by equivalent to T1 of by, right? And T4 of by equivalent to T2 of by. ध्यान दीजिएगा. For this, for any multi-value dependency X2 by, right? If T1 of X, T2 of X, T4 of X are equivalent to each other, then there must be T3 of by, T3 of by that is equivalent to T1 of by, and T4 of by that is equivalent to T4 of by. But still, if only these 2 attributes exist in a table, then there is no multi-value dependency. ध्यान रखिएगा. For this to
to be a multi-value dependency in a relation, there exists at least 3 attributes. So we have to consider one more attribute, right? That is called JAD. So in that, we call, let JAD is another set of attribute, and that JAD is now equivalent to whatever the relation minus X union by X union by X union by. ध्यान रखिए. So we have to check there exists some of the other attribute JAD that is just R minus X union Y, that means remaining all other attribute. For this case, there must exist a T4 of JAD that is equivalent to T1 of JAD, and T3 of JAD equivalent to T3 of JAD equivalent to T2 of JAD. That must hold for a multi-value dependency. So these three conditions must be preserved for मल्टी-वैल्यू डिपेंडेंसी बिटवीन x2 y. ये बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ पे चेक करें तो S1 दिस इज M1, दिस इज नाउ इक्विवेलेंट टू T3, दिस इज नाउ इक्विवेलेंट टू T3, राइट? तो यहाँ पे आप अगर चेक करें भी तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे ये शो हो रहा है कि देखिए M1 हियर, दिस M1 इज नाउ इक्विवेलेंट टू दिस इज T1, this is first tuple, this is second tuple, this is third, this is fourth, and here this T1 is now equivalent to T3, and this is T4 is now equivalent to T2, right? And here all is different in that, right? So considering it, right, we move to this again. A multi-value dependency exists when there are at least 3 attributes like X, Y, and Z in a relation, and for a value of X there is a well-defined set of value of Y. Value well-defined set, that means multiple value, right? Multiple value of Y and a well-defined set of value for Z. However, the set of values of Y is independent of set of values Z and vice versa, right? Like in this case, here you have seen contact number and likes are independent to each other because they are different. These already contact number depend on SID, likes is also depend on SID. Contact number कोई भी हो, like से कोई मतलब नहीं, ठीक? But likes ये किसके हैं? Student के. Contact number किसके हैं? Student के. So they are independent to each other, but these two values are dependent to some other element. Right, other attribute, right? So you can say कि जब भी कभी किसी भी रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी तो क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी? एक तो आपकी एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए, ठीक है? कि कितने एट्रीब्यूट होने चाहिए? 3 एट्रीब्यूट, और दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट. जो भी आपके बाई और जेड होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, राइट? इसमें कि अगर कोई भी रिलेशन में 2 इंडिपेंडेंट रिलेशन आपने कंबाइन कर रखे होंगे, जैसे अगर हम प्रीवियस रिलेशन की बात करें तो आपने देखा इन दिस रिलेशन वी हैव स्टूडेंट हैविंग सम मोबाइल नंबर्स, और वी कैन से स्टूडेंट हैविंग सम लाइक्स, सो दे कैन नॉट कीप इन सेम रिलेशन because all having different set of values, right? तो उससे क्या होगा, जब भी आप इनपुट कराओगे तो मल्टीपल रिपीटिशंस होंगे, ठीक है? मल्टीपल रिपीटिशंस हम हमेशा कहते हैं कि मिनिमाइज होने चाहिए, तो वी हैव टू मिनिमाइज ऑल दोस रिपीटिशंस. नाउ this is a formal definition which we have already discussed in the PENT, right? That is a multi-value dependency X multiple determined by is specified on a relation schema R where X and Y are both subset of R. It specifies the following constant on any relation state R of R
if two tuple T1 and T2 exist in R such that T1 of X equivalent to T2 of X, then there also exist two more tuple like T3 and T4, and these are equivalent to T1 and T2, right? So in that case, the three conditions which we have to satisfy. First is T3 of X equivalent to T4 of X equivalent to T1 of X equivalent to T2 of X, and T3 of bi equivalent to T1 of bi, and T4 of bi equivalent to T2 of bi. And here Z is T3 of Z equivalent to T2 of Z, and T4 of Z equivalent to T1 of Z. So this, if exists these three conditions, then there is a multi-value dependency between X and bi. Now, if we talk about like the functional dependency, we have also trivial multi-value dependency and non-trivial multi-value dependency. In case of trivial multi-value dependency, X multi-value determined by, and bi is a subset of X. If bi is a subset of X, then we call such kind of dependency is trivial multi-value dependency. This play important role in a four normal form, right? That's what we have discussed here, right? And similar to this, we have some inference rules. First three inference rules are same as we have seen in functional dependency, and because these are the sound and complete rule, again we have to consider here to infer more multi-value dependency or valid multi-value dependencies. First rule is reflexive. That is X, if bi is a subset of X, then X determined by. This is a simple, that is a reflexive rule which we have discussed in functional dependency. Augmentation rule, that is same, that is if X determined by, we can consider one more attribute, that is Z, or set of attribute Z, then XZ determined by Z. Transitive rule, this is same, like X to by to Z, then X determined Z. Now from here we have I4, I5, I6, 7, 8. These are for the multi-value dependencies. Complementation rule, that is if X multi-value determined by, then we can infer X multi-value determined R minus X union by. That is Z. जो आपके Z set of attribute अपने अभी बात की थी, right? What is this? Is a complement of the rest of the multi-value participating attribute in multi-value dependency. So if X multi-value determined by, then X can also multi-value determine R minus X union by, that is Z. Augmentation rule is same as augmentation rule is used in the functional dependency. Here just a modification in that. What is in that? If X multi-value determined by, and Z is a subset of W, because we have to use the reflexive property कि y is a subset है, so X derived by, तो यहाँ से आपका directly ये भी हो सकता है W derived Z. So here we have to augment it W in left side, so we can also augment it W in the right side also. We can also take Z as a subset, so we can W is now replaced by Z, right? So here if X multi-value determined by, then WX multi-value determined by Z, clear होगी बात कि if X multi-value determined by, then there exists WX multi-value determined by Z. Similar way transitive rule जैसा उसमें था वैसा इसमें भी है कि X determined by determined Z, then you can say X determine Z. यहाँ पे इसको अब यहाँ पे X determine Z कर लीजिएगा, ठीक है। रेप्लिकेशन रूल क्या है कि अगर कोई X to Y है फंक्शनल डिपेंडेंसी, देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, एक वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, मल्टी वैल्यू में क्या होता है, मोर देन वन वैल्यूज, राइट, एटलीस्ट वन वैल्यू तो डिटरमाइन हो ही रही है। तो जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनको हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी भी कह सकते हैं, X मल्टी वैल्यू डिटरमाइंड बाय। कोएफिशिएंट रूल for functional dependency and multi-value dependency, it is used for if X multi-value determined by and there exists W with the properties ki by and W is empty, means there is no
common attribute between y and w, and w determines z, that means a new attribute. So and y and z is a subset of y, so you can say x determines z, means x determines z, right? So w determines z और w is z is a subset of y, यानी कि z जो है y का सबसेट है, तो डायरेक्टली अगर हम रिफ्लेक्सिव रूल का भी यूज कर लेते हैं, augmentation rule का यूज कर लेते हैं, so you can directly determine x determine z, right? So these basically rules are used for inferring or deriving valid multi-value dependencies, right? So over this we have to talk about the fourth normal form. So what is fourth normal form? See, a relation schema R is in four normal form with respect to a set of dependencies F that include either functional dependency or multi-value dependency, right? If for every non-trivial multi-value dependency, X multi-value determined by in F, every non-trivial multi-value dependency, X multi-determined by, X is a super key of R. X is a super key of R. Clear this point? The similar definition for this, just जब हम super key of R की बात करते हैं तो that means your relation must be in BCNF, right? किसमें होना चाहिए? BCNF. तो यहाँ पे वही सेम डेफिनेशन है, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया. A relation schema R is said to be in four normal form if it satisfies the following. First, relation schema R is in 3NF or BCNF, and if it contain no multi-value dependency. If it contain no multi-value dependency. ध्यान दीजिएगा, कोई भी रिलेशन आपका फोर नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब वो पहले तो BCNF में हो और उसमें कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करती हो. क्लियर हो गई ये बात कि फोर नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन कब होगा? कि जब कोई भी उसमें पहले तो वो BCNF में हो और कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करती हो. ध्यान रखिए. तो यानी कि दिस फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इज हायर देन द BCNF. बात समझ में आ रही कि फोर नॉर्मल फॉर्म इज हायर देन द BCNF, बट फोर नॉर्मल फॉर्म या फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज नॉट मच डिजायरेबल. मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर बेसिकली go with this highest normal form, that is BCNF. That is sufficient for removing all the anomalies and redundancy. But when we have a multi-value, we can also decompose the multi-value dependency. While in the case of the fifth normal form, even fifth normal form is exists in this theory, but not practically implemented, right? So how to get this fourth normal form? Let this is an example. Okay, we have a relation that is employee. Employee contains some attribute like ename, pname and dname, right? Just मैं इसको example को through the pen चौक समझाता हूँ. See here. In this relation, ename, pname and dname, क्या यहाँ पर क्या ये relation, पहला क्वेश्चन आता है इसमें, is it in four normal form? Is EMP relation in 4NF? वो 4NF में है? बताइए 4NF के लिए क्या होता है? 4NF की कंडीशन क्या है? A relation schema is in 4NF if and only if first point है इसमें R is in BCNF,
और सेकंड है देयर एग्जिस्ट नो एमबीडी, नो एमबीडी इन दैट। अब आप मुझे बताइए कि क्या इंप्लॉय रिलेशन 4NF में है। तो सबसे पहले हम ये चेक करें क्या इंप्लॉय रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। बट उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये क्या वो BCNF में है। कौन बताएगा कि क्या ये रिलेशन BCNF में है। बताइए कोई। कोई नहीं बता रहा। समझ में भी आ रहा है या मैं ऐसे ही बस बोलता जा रहा हूं। आकांक्षा, यस सर। समझ में भी आ रहा कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या हुई। थोड़ा कम आया सर। क्यों, रीजन। ये देखो मैंने आपको समझाया अभी तक इतने एग्जांपल से कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तब एग्जिस्ट करती है जब किसी एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू से आप मल्टीपल वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हो। सिंपल सी बात हो ये गई। बात समझ आ गई। ठीक है, और जब हम वो चेक करते हैं तो उसके लिए हमने जो फॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या था कि हम 4 टपल को कंसीडर करेंगे T1 T2 T3 T4। अगर वो x वैल्यू के लिए सेम है चारों वैल्यू, ठीक है, तो अगर वो अल्टरनेटिव वैल्यू में वो आपकी वैल्यूज आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जैसे M1 दिस M1, M2 this M2 means T3 by equivalent to T1 by and T4 by equivalent to T2 by, and for rest of the attribute Z के लिए T1 T4 के साथ और T3 T2 के साथ। तो यहाँ पे देखिए जब एक से ज्यादा वैल्यू के साथ आपका वैल्यू इस S1 से निकाली जा सकती हैं तो इनके बीच में किस टाइप की डिपेंडेंसी हो गई, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो रही है। अब हमने कहा कि वो 4 नॉर्मल फॉर्म में कोई रिलेशन कब होगा कि जब वो BCNF में हो और कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना कर रही हो, यानी कि हमें इसमें से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हटानी होगी अगर एग्जिस्ट करती है तो 4 नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए। तो बताइए क्या इसमें पहला तो पॉइंट है कि R इज इन BCNF, तो चेक करिए क्या ये BCNF में है। BCNF में क्या होता है, BCNF की प्रॉपर्टी क्या कहती है। अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है x2 y तो x सुपर की होना चाहिए रिलेशन का। हाँ, x सुपर की होना चाहिए नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के केस में, नॉन ट्रिवियल। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे ई नेम पी नेम एंड डी नेम तीनों ही क्या है, मिलके कंपोजिट की मिलके ही सुपर की बन रहे हैं। तो ऑब्वियस दिस रिलेशन इज इन BCNF, सिंपल वे। ई नेम पी नेम एंड डी नेम, आप कुछ भी इसमें ड्राइव करें, चाहे ई नेम पी नेम डी नेम टू ई नेम जाए, ई नेम पी नेम डी नेम टू पी नेम जाए, ई नेम पी नेम डी नेम टू डी नेम जाए, दैट मीन्स every time in the left hand side there is a super key. So this relation is already in BCNF. क्लियर हो रही है बात। सर हमने ये कैसे पता लगा लिया कि ई नेम पी नेम और डी नेम मिलके सुपर की बना रहे हैं। देखो अगर आप देखो तो अगर इस रिलेशन की बात करें
तो देखिए स्मिथ एक्स हमने क्या किया कि क्या होती है यूनिकनेस फाइंड आउट करने के लिए। अभी देखिए स्मिथ यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो स्मिथ तो अकेला तो हो रही, स्मिथ के साथ एक्स आ रहा है, स्मिथ के साथ वाई भी आ रहा है, हो रहा है। तो यानी कि ये दोनों अकेले तो हो नहीं सकते, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। तो अगर हम इन तीनों को कंसीडर करें स्मिथ एक्स जोन, तो स्मिथ एक्स जोन और कहीं आ रहा है, नहीं आएगा ना। स्मिथ बाई अन्ना, स्मिथ बाई अन्ना कहीं और आ रहा है, नहीं आएगा ना। सो दैट मीन्स अगर हम इसको सारी वैल्यू को चेक करें तो तभी वो डिस्टिंग्विश हो रही। अगर किसी दो के कॉम्बिनेशन को लेंगे तो वो हमारी रिपीटिशन हो रहा है। देखो स्मिथ एक्स फिर से आ रहा है, ठीक है, इसमें स्मिथ एक्स के साथ जॉन आ रहा है, स्मिथ एक्स के साथ यह अन्ना आ रहा है। तो दैट मीन्स ई नेम और पी नेम मिलकर की नहीं बनेंगे। अब पी नेम और डी नेम के साथ देखें, एक्स जॉन एक्स अन्ना, ठीक है, और यहां पे देखिए एक्स जोन एक और आ रहा है। तो यहां पे एक बार स्मिथ आ रहा है, एक बार ब्राउन, यानी कि डी नेम और डी नेम भी नहीं बन सकते हैं। कि ई नेम और डी नेम को साथ देखें तो स्मिथ विद जॉन एक्स आ रहा, और देखिए स्मिथ विद अन्ना एक्स आ रहा, और स्मिथ विद अन्ना बाई भी आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं है। यानी कि इन तीनों के जब कॉम्बिनेशन लेंगे तभी हम वैल्यू को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही। तो यहां की क्या बनी, ई नेम पी नेम एंड डी नेम। ये बात सबको समझ में आ रही कि व्हाई वी आर कॉलिंग हियर ई नेम पी नेम एंड डी नेम ए कंपोजिट की, राइट, दैट विल डिस्टिंग्विश ऑल द टपल्स इन दिस रिलेशन। नाउ जब ये पूरा ही की बन रहा है तो ये रिलेशन बाय डिफॉल्ट किसमें हो गया, किसमें हो गया, बीसीएनएफ में। अब इसमें इंजेक्शन एनोमली क्या है, क्या आपके पास, आप जब तक कि किसी डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या आप कोई टपल डाल सकते हैं। केवल आपके पास ये इंफॉर्मेशन हो कि एम्प्लॉय स्मिथ प्रोजेक्ट बाई पे काम कर रहा है, तो इनपुट कर सकते हैं जब तक कि उसके साथ कोई डी नेम ना जुड़ा हो। बात समझ में आ रहा है। जब तक डी नेम नहीं जुड़ा होगा तब तक नहीं ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी नहीं कर सकते हैं कोई एलिमेंट। अपडेट करने की बात आई तो रिपीटिशंस बहुत होंगे, ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकते। तो इसीलिए इसको क्या किया, 4 नॉर्मल फॉर्म में डिवाइड करना है। तो यानी कि ये बीसीएनएफ में है, बट क्या मल्टी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो मल्टी वैल्यू के लिए चेक करिए। देखिए स्मिथ 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 एक बार एक्स आ रहा है, एक बार वाई आ रहा है। तो यहां पे देखें अगर हमने T1 T2 T3 T4 इनको कंसीडर किया तो हियर x देन दिस इज x, बाई दिस इज बाई, दैट मींस यहां पर आपके पास दो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ रही है। पहली कौन सी आ रही कि ई नेम नाउ डिटरमाइन मल्टी वैल्यू डिटरमाइन। देखिए ई नेम के साथ स्मिथ के साथ दो वैल्यू एसोसिएट हो रही है एक्स एंड वाई, तो इसलिए ई नेम डिटरमाइन पी नेम। एक तो ये आ रही है, दूसरी आ रही है स्मिथ के साथ डी नेम के साथ, यानी कि ई नेम आल्सो मल्टी वैल्यू डिटरमाइन डी नेम। ये देखिए दो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। There exist two multi-value dependency, first this और second this। अगर ये दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं तो क्या ये रिलेशन 4NF में है, नहीं है। सो EMP relation is not in 4NF, clear, is not in 4NF। सर पी नेम और डी नेम के बीच भी तो हो सकती है ना मल्टी वैल्यू। और डी नेम के बीच में देखिए कैसे हो सकती है। अगर हम देखते हैं x की कितनी वैल्यू, x1 एक x ये, ठीक है, और एक x ये, ठीक है, चार वैल्यू ले लिए। x की जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें कोई कंसीडर कर लेते हैं, x x x x, यहाँ पे जॉन, यहाँ पर अन्ना, यहाँ पर जॉन, ठीक है, और यहाँ पे बॉब। एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कॉम्बिनेशन दो का तो बने ही, दो इक्विवेलेंट हो, दो टपल, दो वैल्यूज। देखिए ये जॉन आ रहा है एक एक्स के साथ, ये बात क्लियर हो गई। यहां पे एक्स के साथ अन्ना आ रहा है, एक ये हो गया, ठीक है, एक एक्स के साथ जॉन आ रहा है, मतलब रिपीट हो गया। चलो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस T1 इज इक्वल टू T3, ठीक। बट अब ये अन्ना की भी एक्स के साथ एक वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, अन्ना का कॉम्बिनेशन एक बनना चाहिए।
तो जो अन्ना वाला ये, अब एक्स का कोई भी और अन्ना के साथ नहीं बन रहा है, एक्स का किसके साथ बन गया, बॉब के साथ, राइट। यानी कि वो जो प्रॉपर्टी थी ये वाली T1 इक्वलेंट टू T3 ये तो सेटिस्फाई हो रही, बट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, T2 ऑफ बाई इक्वलेंट टू T4 ऑफ बाई, दे आर डिफरेंट। दैट्स व्हाई हियर P name with D name is not a multi value dependency। क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पे अगर हम जिम को डी नेम और पी नेम के बीच में देखें तो जिम 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 जिम, ठीक, एक बार डब्ल्यू, एक बार एक्स, एक बार बाई, एक जेड, कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सेम इसमें भी देख लिए डब्ल्यू एक्स बाई जेड, बॉब पे देख लिए डब्ल्यू एक्स बाई, ऑल आर डिफरेंट, राइट। सो दैट्स व्हाई ना तो पी नेम और डी नेम के बीच में बन रही, ना डी नेम और स्मिथ के बीच में बनेगी, डी नेम से ई नेम के बीच में। सो ओनली टू फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, वन इज द मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, वन इज कॉल्ड ई नेम टू पी नेम एंड ई नेम टू डी नेम। सो दिस इज नॉट इन 4NF। अब जब 4NF में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। डिकम्पोज करेंगे तो क्या रिलेशन होगा, डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास जो दो रिलेशन बनेंगे, पहला रिलेशन बनेगा, क्योंकि किस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की वजह से एग्जिस्ट ये 4NF में नहीं है, एक ई नेम टू पी नेम, तो पहला रिलेशन हमने बनाया ई नेम विद पी नेम, ठीक है, जिसमें अब आपके पास केवल दो ही एट्रीब्यूट है। अगर दो ही एट्रीब्यूट है तो ऑब्वियस है इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। किसी रिलेशन में अगर दो एट्रीब्यूट हैं तो क्या मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी, नो सर, नो। तो यहां से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी खत्म हो गई। सिमिलरली R2 रिलेशन जो बनेगा जिसमें दूसरा है वो क्या होगा, ई नेम एंड डी नेम, इसमें भी केवल दो ही एट्रीब्यूट आए, तो यानी कि यहां से भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हट गई। और इनमें क्योंकि दोनों ही जिस तरह से इसके वैल्यूज हैं उनमें आप कह सकते हैं कि जो हमारी की बनेगी वो बनेगी ई नेम और पी नेम की, और ऐसे यहां पे भी ई नेम और टी नेम की, राइट। सो नाउ these two relation are now in 4NF. Now R1 and R2 become in 4NF, right? ये बात समझ में आ रही सभी को कि how we can decompose this relation into 4NF। क्लियर हो रही है बात। So you can इसको नोट कर लीजिए चाहे कि how we can decompose a relation into this। सर एक बार ये बता दीजिए ई नेम और पी नेम मिलकर की क्यों बनेगी। वही चीज जो अभी मैंने बताया था, इनकी वैल्यूज अगर चेक करें, इनकी वैल्यूज अगर चेक करें तो ई नेम में क्या क्या वैल्यू आएंगे, स्मिथ और इसकी स्मिथ स्मिथ, देखो अभी मैं इसका आपको एग्जांपल क्या सेकंड पार्ट दिखाता हूं। अब अगर ये वाला जो रिलेशन था इसके साथ हमने ई नेम और पी नेम का देखा, ठीक है, तो स्मिथ 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 की के साथ कौन से पी नेम एसोसिएट हो रहे हैं, एक्स एंड वाई। ब्राउन के साथ कौन कौन से एसोसिएट हो रहे हैं, ओनली ब्राउन के साथ ये सारे ब्राउन है, तो डब्ल्यू एक्स बाई जेड, सो ओनली डब्ल्यू एक्स बाई जेड। क्लियर हो रहा है। ई नेम के साथ ये हमारी एंट्री रह गई इसमें। तो अब अगर चेक करें तो स्मिथ एक्स स्मिथ के साथ बाई डिफरेंट है, अगर ये दोनों में एक्स एक्स आता है और इनमें सब में एक आता, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या, ई नेम और पी नेम दोनों का ही कॉम्बिनेशन से डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, किसी एक एट्रीब्यूट से डिस्टिंग्विश नहीं हो रहे, टपल हो रहे कि नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना। तो यहां से हमारा ये कॉम्बिनेशन ही इसका आपका की बनाएगा। सेम केस ई नेम एंड डी नेम का देखें तो ई नेम और डी नेम में इसमें तो ब्राउन नहीं है, दो है, बट यहाँ पे डी नेम क्या है, या जॉन है या अन्ना है या फिर बॉब है, तो अन्ना जॉन बॉब को हमने इनको इस तरह से कर दिया। तो नाउ दिस इज नाउ अगेन चेक करिए, तो यहाँ पे हर बार अलग अलग आ रहे हैं, डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, तो यही दोनों ही हमारे की बनाएंगे, ई नेम विद डी नेम। ये बात समझ में आ रहा है। सो दिस इज नाउ हाउ टू कन्वर्ट ए employee relation that is not in 4NF decompose into
4 NF relation, employee project and employee dependent. Now, this is for the fourth normal form. Come to the joint dependency. Joint dependency used in fifth normal टाइम form. हो गया। मैं सोच रहा था इसको कंप्लीट, एक बस 2 ही स्लाइड 3 स्लाइड हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। कल केवल हम लोग जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों के भी आप लोग ला सकते हैं प्रॉब्लम्स, है आप लोगों के पास टाइम 15 मिनट 5-10 मिनट भी हो, बताइए। नहीं है, चलिए ठीक है, नहीं है तो फिर कल बात करते हैं, ठीक है। आप पढ़ लीजिए टाइम प्लीज। तो है लेकिन अभी इतना ही पढ़ लिया।